बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पहले वेस्टर्न रीजन मीटिंग और दूसरे राज्य स्तरीय परिषद का आयोजन नागपुर में हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को विकास पुरुष इस उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं प्रभाकर राव मुंडले इन्हें जीवन गौरव पुरस्कार बहाल किया गया। इस समय पूर्व मंत्री सुनील केदार, पूर्व सांसद अजय संचेती, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष निमेश पटेल, उपाध्यक्ष राजेंद्र अठौले, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहिंदर रिजवान, महाराष्ट्र के चेयरमैन राजेंद्र मोले, नागपुर अध्यक्ष राजेंद्र नायर, नागपुर चेयरमैन प्रदीप नगरारे आदि मंच पर विराजमान थे। इस अवसर पर मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। Good evening, ladies and gentlemen. Distinguished chairman of today's felicitation ceremony, dignitaries on and off the dais, and my dear friends, it gives me immense pleasure to stand in front of you and welcome you to this august house for the felicitation of our most respected P.R. Mulle Sahib, veteran par excellence, and our dear friend Sri Rajendra Athavale, National Vice President, Western Region of BI. At the outset, I thank the organizers for giving me a chance to welcome you. It is my honor to welcome our most honorable Sri Nitinji Gadkari Sahib with most affection and due respect. Words will fail if we talk about his contribution for the nation in providing world-class infrastructure through the length and breadth of our nation, which we could never dream of. People in several states may not know the PWD ministers of their states, but everybody know the name of our proud Gadkari Sahib. We are proud that we are from the birthplace of the most dedicated son of Nagpur, whose mission in life is development and only development of the whole nation. He is unbiased, work-oriented, and most dedicated son of India. His mission, vision, and development of road infrastructure are not inferior to any class 1 infrastructures of the whole world, so that one day the whole world will recognize that the son of Nagpur has revolutionized the Indian infrastructure. Now the time is not too far for the development of nations to come and study the expertise used in India. Being aware of your busy schedules, you have spared your valuable time to be with us to felicitate our most respected Mulle Sahib. On behalf of the organizers and on my own behalf, I extend a very hearty welcome, sir. I take this opportunity to welcome Sri Sunilji Kedar, Honorable Ex-Cabinet Minister of Maharashtra, for having accepted our invitation and being with to us grace the occasion. It is my pride to welcome Sri Nimesh Patel, Honorable National Chairman of BI, who is with us guiding several programs. He is a great leader and we expect him to reach BI to newer heights with his vision and capability to convert the impossible to possible. He is a very reputed builder and he has steered clear several obstacles faced by the builders community. It is my pleasure to welcome to Honorable National Secretary Sri Gyan Madani and Honorable Treasurer Sri Mohinder Rajwani and our State Chairman Mr. Datta Mule. Now I am delighted to welcome Sri Ajayji Sanjadi, Honorable ex-MB who requires to no introduction. He is traditionally a reputed builder and there are multiple number of prestigious projects within and out of India. On behalf of the organizers, I welcome you cordially, sir. As all of you aware that our past National President Sri P.R. Mulle Sahib, our guiding spirit who is going to felicitate today, needs no introduction. He is a champion of several social reforms and his contribution to the field of construction industry and various fields bounds no limits. We are extremely delighted to honor him with Life Achievement Award and
pray the Almighty to guide us with His valuable suggestions. On behalf of the organization and on my own behalf, I cordially welcome you, sir, and pray the Almighty to keep you in a good health. I am pleased to welcome my friend Sri Rajendra Athavale, Honorable National Vice President, BI Western Region, being the past chairman of our center and past chairman of BI, Maharashtra. He was instrumental for the efficient working at the center and state during his tenure. He requires no introduction as he is a social worker of repute and also he is a reputed builder of our locality. By dint of his hard work, efficient administration and teamwork, he has carved a niche for himself wherever he has worked. He will be an asset of any organization he is attached with. I welcome you cordially, my dear. As the time given to me is very limited, I don't want to elaborate much. I gracefully welcome Honorable past National President Sri Avinash Patel and Sri Bhagavan Devkar, who have kindly accepted our invitation and has come to the grace of occasion. I also welcome all state center chairman, members and all invitees, delegates and valuable sponsors. I will be failing in my duties if I do not welcome the great souls, different subcommittees who have worked day and night for the past several days to make this function a great success. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai BI. लगभग 20 वर्षों के बाद नागपुर को बीएआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान बीएआई 1941 से अस्तित्व में है, जिसके औपनिवेशिक भारत में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए समांतर रूप से लड़ाई लड़ी थी। बीएआई की कुछ 200 से अधिक शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। भारत सरकार की बीएआई को स्वीकार करती है क्योंकि इसका एक सदस्य सरकार के शीर्ष निकाय में नमित होता है। आज संपन्न होने वाला सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। 5 राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लगभग 250 से 300 प्रतिनिधि आज यहाँ पर साक्षीदार के रूप में उपस्थित है। सबसे पहले एक नागपुर का और बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी से होने से 2011 में नितिन जी जब उसके पहले ले गए थे मुझे, उसके पहले मैं भी यही काम करता था, अभी तक वापस शुरू नहीं किया काम। आप सबका मैं नागपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीआई को, नागपुर को ये मौका मिला कि उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुंडले काका को देने का तय किया। मुंडले काका बीआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब जब जिस पद पे रहे, चाहे वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, बीसीसीआई के ट्रेजरर हो या बीआई के नेशनल प्रेसिडेंट हो, उन्होंने हमेशा व्यक्ति निर्माण का काम किया। बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन संस्थाओं के अंदर में नए नए लोग आना चाहिए और संस्था में नया ब्लड इन्फ्यूज होना चाहिए, इसका उन्होंने हमेशा प्रयास किया। जब भी लोग मिलते हैं तो हम लोग हमेशा, कई बार एक आदत हो जाती है कि संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तिगत कामों की चर्चा ज़्यादा कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जिस संस्था में आप है उस संस्था का हित किस चीज़ में है, उस संस्था के किन कामों के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, उसके हित का हमेशा ध्यान उन्होंने रखा। और जो नए लोग आते थे उनको वो हमेशा कहते भी थे। आज जीवन गौरव पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा रहा है, शायद इससे अच्छा नाम हमारे पास और कोई हो भी नहीं सकता था। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु मिले। नितिन जी, आज सिर्फ उनका सत्कार था और बीआई का कार्यक्रम था, इसलिए आए अभी और वापस भी निकल जाएंगे वो। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नितिन जी। आने वाले बहुत से लोगों को कहना है और कार्यक्रम को भी हमें सुचारू रूप से जल्दी संपन्न करना है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब जानते हैं इस महाराष्ट्र का गौरव और देश में जिन्होंने अपने काम के तहत एक अलग पहचान बनाई, जिनको हम हर टाइम वर्कोलिक बोलते, नामदार नितिन गडकरी जी। मंच पे बैठे सम्मान्य मुंडले साहब, हमारे मित्र अजय संचेती जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीआई के श्री निमेश जी,
राजेंद्र जी आठवले जी, सारे महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, एक अलग सलग प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ निमंत्रित किया BI ने। इसके तहत सबसे पहले मैं BI का तहे दिल से शुक्रगुजार। बीइंग ए पर्सन ऑफ ए रूरल कम्युनिटी, गाँव खेड़े से आता हूँ, पर ऐसे बिल्डर एसोसिएशन ऐसे प्रोग्राम में कभी कभार मौका मिल जाता है। पर आज आई एम वेरी मच प्राउड टू बी देयर। राजेंद्र आठवले, he has brought those glorious day again to the Nagpur after something 20 years back. म्हणून सगळं राजेंद्र आठवलेचे सगळ्यांनी मनापासून टाळ्या वाजवून स्वागत करासाठी विनंती करतो। देश की आज़ादी का 75 साल हम सब अभी जश्न बनाने जा रहे हैं। इस 75 साल में हर सेक्टर ने अपनी अपनी जो हुनर है, अपना अपना जो काम है, काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तभी विथ ऑल ऑड्स आज हम लोग दुनिया की तीसरी महाशक्ति होने जा रहे हैं। और हर सेक्टर में काम करते बिल्डर एसोसिएशन वालों ने भी उसी तहत काम किया होगा, इसके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हर शहर जो डेवलप हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इस देश में जो आबादी की स्पीड है, उस स्पीड के साथ मैच करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों ने जो किया है, मेरे ख्याल से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मैचिंग का काम बिल्डर एसोसिएशन के माध्यम से हुआ है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत वापस शुक्रगुजार। अदरवाइज़ इतनी आबादी को उनकी ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट्स, उस सारी रिक्वायरमेंट्स को उस स्पीड के साथ आप लोगों ने मैच किया है। कई कबार आपका उस चीज़ में हो सके आपको उतना प्रोत्साहित ना किया जाए हो, पर सम्मान्य नितिन जी गडकरी साहब यहाँ पे है, निमेश जी आप भी हो, काफ़ी कुछ दोनों अपने आप में एक ताकत रखते हो, अपने आप सोच भी रखते हो। पर मैं ऐसा सोचता कि ये कोरोना के 2 साल के तहत जो थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, काफ़ी डिस्टर्बेंस आया है। मैं अजय भैया से बैठे बैठे अभी वही बात कर रहा था, हम दोनों वहाँ बैठे थे। इनको संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है कि बिल्डर्स की तरफ देखने का रवैया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोसाइटी में देखने नहीं मिलता। आई मे बी एग्जैक्टिंग द थिंग्स, हो सकता है मैं किसी को कुछ पटे ना पटे, पर ये बात है कि सोसाइटी के हर सेक्टर का इनकी तरफ देखने का नज़रिया उतना पॉजिटिव नहीं होता है जो होना चाहिए हाल में। पर ये कोरोना में काफ़ी कुछ प्लिंथ, अब उनकी भाषा में बात करें, निमेश उनकी भाषा में प्लिंथ वाला प्लिंथ थोड़ा हला हुआ है या फिर समथिंग समवेयर इज़ रॉन्ग, पर इसको फिर से उसी मजबूती पे लाना ज़रूरी है। ज़रूरी इनके लिए नहीं है, बिल्डर एसोसिएशन वाले या उसमें कोई बिल्डर्स होगा, वो अपना बिजनेस कारोबार आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेगा, पर आज़ादी का 75 साल हम जश्न बनाते हुए यदि हमको फिर से उतने ज़ोर से उड़ान करना है तो ये सेक्टर को उसी मजबूती के साथ ले जाना उतनी ज़रूरत है। और इनकी तकलीफ़ें जो है, इनकी तकलीफ़ें नेशनल बिल्डिंग के नज़रिया से इनकी तकलीफ़ें देखना चाहिए, नेशनल बिल्डिंग के नज़रिए से इनकी तकलीफ देखना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला हूँ। आई एम जस्ट वेरी मच श्योर, आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट द पीपल सिटिंग द साइड्स विल लुक आफ्टर दीज थिंग्स एंड विल गिव देयर बेस्ट टू वर्क आउट ऑन दिस थिंग्स। फिर से ये बिल्डर एसोसिएशन मेरे को यहाँ बुलाया, इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार। और राजेंद्र आठवले एक व्यक्ति ने इस नागपुर को उस गौरव मिला है, इसलिए उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित नेशनल प्रेसिडेंट BAI श्री निमेश पटेल। Nimesh Patel is Managing Director of Messrs Maruti Infrastructure Limited, Ahmedabad. The firm is BSE listed company. The company is leading and fast-growing multidisciplinary construction company having strong presence in Gujarat with large number of associates in the state. He is Vice President of prestigious Karnavati Club Limited. He has been associated with BAI since long and has been chairman of Gujarat Center during 14-15, state chairman BAI Gujarat during 18-19 and vice president BAI 19-20. मैं यहाँ सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री निमेश पटेल जी को।
मैं बीआई का प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार नागपुर आया हूँ। नागपुर जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के मैप में मध्य स्थान पे है। वो अपनी आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, वाइब्रेंट म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ऑफिसेस, रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। और इसके ऊपर सबसे बढ़कर यह अपने साक्षर और बुद्धिमान लोगों के लिए जाना जाता है। पूरा देश जानता है कि नितिन गडकरी जी जो नागपुर के हैं वह कितने दूरदर्शी है, जिन्होंने कम से कम समय में हमारे देश को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण दिया है। मैं अपने भीष्म पितामह श्री मुंडे जी साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सर्वोच्च सम्मान के सम्मानित करने के इस शुभ अवसर पर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इतनी विशिष्ट जन्मदिन के सामने खड़ा होना अपने सम्मान के रूप में मानता हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, मुझे पता है कि मुंडे साहब को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व है जिन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता साबित की है। वह एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उन्होंने कई एजुकेशन सेक्टर की स्थापना की है, एक क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर है और वेल नॉन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे ऊपर वो बीआई के पास्ट रेसिडेंट है। उनकी शानदार उपस्थिति और प्रदर्शन के कारण उन्हें बीआई के सदस्य प्यार से रॉयल मेंबर कह के बुलाते हैं। मैं आपको नमन करता हूं मुंडे साहब इस अवसर पर। हमारे बीच बूटीबोरी सेंटर के एक और दिग्गज भी है, वह कोई और भी नहीं बल्कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र आठवेल जी हैं। वो एक बड़े दिल वाले व्यक्तित्व है जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम में बहुत अच्छे हैं। बीआई का सौभाग्य है कि मुझे राजेंद्र आठवेल जैसे वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं और मुझे विशेष रूप से खुशी है कि वह मेरे कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट बने। मैं बीआई के महत्व के कई मामलों पर उनके साथ विचार विमर्श करता हूं। जैसा कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का टूक में परिचय देना चाहूँगा, जो जिसे बीआई के नाम से जाना जाता है। महोदय, बीआई की स्थापना सन 94 में पुणे में अंग्रेज ब्रिगेडियर श्री जैक्सन ने 1941 में की थी। भारत भर में बीआई के 200 से अधिक शाखाएं हैं और 1.5 लाख से अधिक मेंबर है, जिसमें कई छोटे, मध्यम और बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं जो गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं। मैं आप जैसे विजनरी और पर्सनालिटीज़ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के नेतृत्व कर रहे हैं सर। मुझे विश्वास है कि आपके विज़न और विजन से भारत निकट के भविष्य में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। सर, बीआई के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे मिनिस्टर हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिले हैं, बल्कि हमारी नहीं भारत देश भी बहुत सौभाग्य है। आप सब लोग जानते होंगे कि भारत के आज़ादी के इतिहास के बाद जितना काम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे डिपार्टमेंट नहीं हुआ, इतना काम गडकरी जी के हिसाब से उनके कार्यकाल में हुआ है। मैं हर हमेशा गडकरी साहब को सोशल मीडिया पर उनका वॉच करता हूँ। उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत दिल छू जाता है। तो वो कभी भी बोलते हैं तो बाय हार्ट वो दिल से अपनी बात बताते हैं। उनके लिए मैं उनका हर रोज़ वॉच करता हूँ। तो लास्ट 2 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे देख रहा था उनका, तो उनकी ऑफिस में एक बैनर लगा हुआ था कि अमेरिका रोड आर गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच। तो फिर दूसरा नीचे एक सेंटेंस था कि अमेरिकन रीच है इसलिए रोड नहीं है, अमेरिकन रोड अच्छे है इसलिए अमेरिका रीच है। वो बहुत दिल छूने वाली बात मुझे लगी। और आप सभी जानते होंगे 2 दिन पहले भी उन्होंने लोकसभा में बताया था कि दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अमृतसर 2 घंटा 4 घंटा, जो पहले 12-12 घंटे में 18 घंटे में पहुंचते थे। और गडकरी जो दिन रात काम कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन जैसे मंत्री अपने को मिले हैं। साथियों, मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा हमारे बीआई के कुछ मेंबर को 28 जून 2022 को नई दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार NHI 21 को आयोजित किया था, जिसमें हमारी कई बीआई की सदस्य मेंबर है, जैसे कि L&T डक्कन टोलवे लिमिटेड, मेसर्स GMR हैदराबाद, BIPL, एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स SP संगला, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर,
मेसर्स दिनेश चंद्र अग्रवाल, मेसर्स सिंगल इंडिया, उन सभी को इस समारोह के दौरान मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। सर, मुझे आपके साथ आकर वास्तव में बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे इस भव्य समारोह में आमंत्रित करने के लिए श्री राजन नायर की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूं और मैं साथ में बुटीबोरी और नागपुर केंद्र की भी सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। Sir, this is a new technology from Turkey. We are getting the design done in Turkey. This is a composite beam, steel beam connected with concrete, RCC concrete, precast and pre-tension concrete at the bottom, by which we can go for larger span. 60 meters, 70 meter comfortably we can go with a lesser depth of beam. Maximum about 900 or 1 meter depth of beam, we can do this fabrication and steel beam. So this is how the beam looks, sir. Bottom you can see the concrete with the pretension, and that is the steel beam. So we can build the road overbridges, railway overbridges, as well as the commercial buildings. And right now we have started one commercial building of 9-storied in Karnataka for a hospital project, where from 200 columns we are reduced to 80 columns, sir. In just 40% of the columns we are building this project. These are all the beams which can also take cantilever of almost 30 meter. We can do a cantilever, and this is how we transport it to the site. You can see on the trailer. This is a typical bridge design for ROB. This is also a typical design. We can have a span from column to column, even 60 meter, 200 feet we can have, sir. This is one project which is going on by our Turkey counterpart in Israel, near the airport, Skywalk. These are all the typical beams which are already being manufactured in Davangere, in Karnataka, for a hospital project. Already products are ready and the installation is yet to begin now. This is a medical college which we are first time and first in India. This is the project with this new technology. Yes, sir. He can, as I mentioned, from 201 column, we are reduced to 80 columns. In the building itself, we are having a span of 28 meter, 30 meter. So even in basement, there is so much of comfort in terms of car maneuvering, all that. And in all the other floors, layout will be very easier and we'll get more space, usable space. This is a typical design. That's it, sir. So thanks for your valuable time. I'm sure you are able to get the new technology thing, and we really look forward for your support to take it forward in national highways as well as railway bridges. Thank you, sir. Thank you everybody. आज यहाँ आए हुए जितने भी डेलीगेट्स हैं सर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है, इनकी सबकी अगर टोटल करेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा काम इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद में वो एम्प्लॉयमेंट भी देती है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट के बराबरी में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट देती है सर। मैं समझता हूँ पहले शहर एक ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता था सर, आज शहर गडकरी साहब के नाम से जाना जाता है। जब भारत देश मित्रों स्वतंत्र हुआ था, वहां से आज तक जितने हाईवे मिनिस्टर हुए होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर, उनकी टोटल किलोमीटर की जितनी लेंथ होंगी, उससे ज्यादा लेंथ किलोमीटर का काम सर ने किया है। उसके लिए मैं नमन करता हूं सर। मेरे मित्र राजन शाह हरदम बोलते हैं गडकरी साहब के बारे में कि मैं बहुत देशों में घूमता हूँ, ऐसे चिकने रास्ते, प्लेन रोड दिखते हैं, सिर्फ गडकरी साहब ही अपने देश के रास्ते प्लेन करवा सकते हैं। उनको उतना यह है, पैशन है। हमारे साहब के बारे में जितना बोलो उतना कम है, लेकिन उनके पैशन के साथ में काम करना हमको बहुत नागपुर से है, इसका हमें बहुत गौरव है। और ऐसे विकास पुरुष को मैं सैल्यूट करता हूं सर। हमारे यहाँ
अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम अच्छा हो रहा सर, लेकिन जैसा सेंट्रल इंडिया में जैसा एक स्किल डेवलपमेंट और R&D, इसके लिए एक अच्छी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टीट्यूट होना चाहिए सर, और वो इंटरनेशनल लेवल की होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं स्टडी करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, बाहर से लोग यहाँ आना चाहिए, ऐसी एक आधी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूट होना चाहिए सर। अगर वो सेंट्रल इंडिया में खुलती है तो हम BI का हमारा एक मानस रहेगा, ये उपक्रम को हम साथ लेके चलेंगे, हम उसको कारगर करेंगे सर। नीति आयोग जैसा है, नीति आयोग पे सब पॉलिसी पे काम होता है, हेल्थ की पॉलिसी होगी, रोजगार की पॉलिसी होगी, शिक्षा की पॉलिसी होगी, ये सब ऐसी सभी पॉलिसी पे नीति आयोग पे काम करता है। लेकिन मेरा एक कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलो या एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कमेटी जैसी एक आधी ऐसी कमेटी बने या ऐसा आयोग बने कि जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, उसमें सब अलोकेशन हो, तो अपने जो आप नया सपना हम देखते हैं आप वो कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। इसके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कमीशन बनना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। नए भारत के लिए जो हमने सपना देखा है वो अगर ऐसा आपके रूप में जैसा काम हो रहा है, आप जो करवा रहे हैं, मुझे कोई शंका नहीं, जल्दी से जल्दी हम नया भारत देखेंगे। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़े अड़चन के समय में से जा रही सर। थोड़ा जैसा एक वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो एक मसला है, बड़ा एक गले में हड्डी बन के रह गया है सर। उसमें वो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना बड़ा इम्पॉसिबल है। हमारे इसके मिश्रा सर बोलते हैं, लेकिन उसमें अगर पिटिशन करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, अपने को कुछ अच्छा उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरा कहना है सर, अजय भैया बोल रहे थे वो भूपेंद्र यादव साहब बहुत क्लोज है और वो एनवायरनमेंट उनके तरफ है, तो एक आधा अगर ऐसा कुछ एक करके कुछ रास्ता निकाल सकते हैं तो सब के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम अड़े हुए हैं सर उसके लिए, तो आपने उसमें हमें रिलीफ दिलाई है सर। वैसे ही GST का है, अभी 18% GST हो गया, पहले 12% GST था, पहले जहाँ 5% था वो 12% हो गया, 18% हो गया। सर मॉडरेट मिलता है, लेकिन वो हमको हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गया तो इनडायरेक्टली बहुत कॉस्टिंग बढ़ गया, क्योंकि जैसा इनवाइस हम रेस करते हैं वैसा उतना 7 तारीख के अंदर हमको उतने पैसे डालने पड़ते हैं। 10 करोड़ का अगर एक इनवाइस ये कर दिया तो 1.25 करोड़ रुपए हमको 7 तारीख के अंदर और एडिशनल डालना पड़ता है। तो वो जो है, तो हमारे पास में तो बैंक का पैसा है, वो इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो कॉस्टिंग बढ़ जाती, और कॉस्टिंग स्टील सीमेंट का रेट बढ़ गए, उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सबको लगता है कि हमने सस्ते में घर देना चाहिए, लेकिन सस्ते में घर कैसा दे पाएंगे सर अगर ये सब चीज़ें बढ़ गई तो? करके हमको कुछ तो भी रिलैक्सेशन या कोई तो भी एक मोड में डाल दो कि जिसमें हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिले और हम सस्ता घर दे पाएंगे। अभी 1000 करोड़ 2000 करोड़ के टेंडर तो है, लेकिन हमारे फैटर्निटी में 50 करोड़ प्लस माइनस वाले बहुत सारे लोग हैं। उसके बारे में एक कोई तो भी नीति बनना चाहिए जिससे सबके काम सुचारू हो, सब 2025 के बाद में सब सुजलाम सुफलाम हो, ऐसा मुझे लगता है सर। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, मैं मेरा ये सम्मान मैं मेरे गॉडफादर बाबा साहब को समर्पित करता हूँ और सबको अपन सुनने के लिए आए हैं। मैं एक शायरी बोलता हूँ, माना के इस चमन को गुलजार नहीं करेंगे हम, माना कि इस चमन को गुलजार नहीं करेंगे हम, मगर जिस राह से भी गुजरेंगे, जिस राह से भी गुजरेंगे कुछ तो कांटे जरूर कम करेंगे हम, जरूर कम करेंगे हम। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। माननीय श्री PR मुंडले, born in 1939, he is a civil engineer and has been in the construction field for more than 45 years.
His construction firm is registered with the Government of Maharashtra as a Class 1 contractor. His firm has carried out many prestigious projects basically in irrigation sector. He has an extended social life spanning across his profession, sports, education and social upliftment. He has been the president of Vidarbha Cricket Association, treasurer Board of Control for Cricket in India, member of organizing committee of World Cup in 1996, chairman Nagbhushan Award Foundation, chairman Tarun Bharat newspaper, Senate member Nagpur University and chairman apex body of Contractors Association of Vidarbha. He is at present President Dharampet Education Society, which manages 3 colleges and 9 schools in Nagpur. President Vanarai, Vidarbha President Mundle Educational Trust, President Blind Relief Association and Vice President Deen Dayal Research Institute. He is a Rotarian and a recipient of Nagpur Bhushan Nagari Sanman. He is a life member of Indian Concrete Institute Maharashtra chapter of American Concrete Institute, India Water Resource Society, Builders Association of India and is patron of Bhosla Military School, Nashik. He has founded Mundle College of Arts and Commerce, Mundle Academy of Commerce Research Management, late Shrimati M.R. Mundle College of Architecture, Mundle Public School, Central India School of Fine Arts, Mundle English Medium School, Mundle Primary School, Sahar Adventure Training Park, which is affiliated to International Adventure Association Outward Bound, and Pasaidan Parisar, a spiritual educational part. नागपुर नगरी के भूषण तथा हमारे BAI के लिए भी एक सम्माननीय अनुभव संपन्न व्यक्तित्व श्री प्रभाकर राव मुंडले. हमारे मराठी के कवि बोरकर लिखते हैं, देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथी चालती, देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथी चालती, वाळवंटातून सुद्धा स्वस्तिपद मे रेखिती. त्यांच्या अनुभवसंपन्नतेचा आम्हाला सगळ्यांना फायदा होईल, मार्गदर्शन मिळेल असं म्हणत मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं माननीय गडकरी साहेबांना विनंती करते की त्यांनी श्री PR मुंडले यांना जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करावं. लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड. सबसे पहले मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई कि छोटू भैया का जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया है उसके लिए आप सब लोगों ने उनका सत्कार किया है. मुझे याद है जब वो 60 साल के हुए थे तब एक कार्यक्रम हमने किया था वसंतराव देशपांडे सभागृह में. छोटू भैया का परिचय मैं जब से विद्यार्थी था तब से मेरा परिचय उनके साथ हुआ है. हमारे महल क्षेत्र में भी वहीं उनका जन्म हुआ है और उनके पिताजी नील सिटी हाई स्कूल में शिक्षक थे. बहुत ही मुंडले बाड़ा करके काफ़ी मुंडले परिवार बड़े प्रमाण पे वहाँ रहते थे और बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने शिक्षा को पूरा किया है. मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो वो पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उन्होंने लिया और कुछ दिन तक उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की. इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर करके उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया. हमारे नागपुर ज़िले में विदर्भ में अनेक बड़े बड़े प्रकल्पों का काम उन्होंने यशस्वी रूप से किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बिल्डर के रूप में, इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनकी तो मान्यता है ही है. पर इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है और जो विशेष रूप से मैं याद रखता हूँ और वो ये रखता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तो शिवाजी नगर में दत्ता जी के यहाँ जाते थे. तब हमारी औकात भी नहीं थी, इज्जत भी नहीं थी, मान्यता भी नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और सम्मान मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था. तो हालत सभी दृष्टि से खराब थी. तो हम जब भी कोई काम अड़चन में आते थे, करने की बात आती थी, तो छोटू भैया के घर में जाते थे और हमारे पीछे वो खड़े रहते थे. हमारे अड़चन के समय जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमारी कोई कीमत नहीं थी,
तब हमें संभालने वाले और हमारे पीछे खड़े रहने वाले छोटू भैया, ये हमारे जीवन में हमको हर समय याद है। मैं अक्सर 2 बातें याद रखता हूँ कि जिन्होंने जीवन में कठिन समय में काम किया है उनको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो छोटू भैया के लिए लागू नहीं है, पर जीवन में जो व्यक्ति अपना साथी होता है उसके अच्छे काल में अगर साथ नहीं दिया तो एक बार चल जाएगा, पर उसके कठिन काल में उसके पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। तो छोटू भैया का और मेरा संबंध एक बड़े भाई के रूप में हमारे लिए है। और गंगाधर राव जी के घर के बाजू में जो देवेंद्र जी ने घर बनाया उसके बाजू में छोटू भैया का ऑफिस था। उन्होंने बहुत अच्छा काम इरिगेशन में किया है और कॉन्ट्रैक्टर करके बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष भी रहे। और मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र में, तब काफ़ी बार उनसे मैं सलाह लेता था कानून बदलने के लिए, नियम बदलने के लिए। अनेक बार वो मुझे आते थे, बताते थे, मार्गदर्शन करते थे। मैं उस समय मलबार हिल पर रहता था और काफ़ी बार पॉलिसी बनाते समय उनसे काफ़ी बार मेरी चर्चा हुई, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ और मुझे इंजीनियरिंग का सही में कुछ नहीं समझता। ये मेरे बारे में एक मिस इम्प्रेशन है कि मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ। और मैंने अपना घर जब बनाया तो मेरे बेडरूम में पिलर निकल गया, इतना मैं वो भी नहीं कर पाया। और मैं कार्यक्रम में जल्दी आ सका। पर एक बात जरूर है कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका छोटू भैया का संबंध है, उन्होंने उस समय काफ़ी योगदान किया है। और मैं तो, मेरा संबंध वैसा नहीं है, पर ये रियल इस्टेट वाले और रोड कंस्ट्रक्शन वाले, तो रियल इस्टेट वालों के बारे में तो मैं बहुत बार जाता हूँ, कहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। पर वो क्या हुआ कि शुरुआत में खूब माल मिला है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की उतना फ़ायदा मिला। 2 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, 4 करोड़ का फ्लैट, FSI, सब सिस्टमेटिकली सब जम गया। कैसा नक्शा पास करना, कैसा सैंक्शन करना और कैसा बेचना, ये पूरा ठीक से हुआ। पर अभी क्या हुआ कि देश में 90%, 95, 90% पॉपुलेशन ऐसी है, जो 10% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो 25 लाख के ऊपर नागपुर में फ्लैट ले सकती है, ऐसी 10% है। और मुंबई में 50 लाख के ऊपर ले सकती है, ऐसी 10% है। पर बिल्डर बना रहे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के फ्लैट। अब कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, सबने घर बना लिए। अब नेचुरली क्या हुआ कि बैंक से कर्जा ले रहे हैं। जो बैंक से कर्जा लेता है फिर ब्याज चढ़ते रहता है, ब्याज का मीटर रुकता नहीं और ये माल बिका नहीं जाता। और फिर आजकल तो मालूम है तकलीफें कितनी हुई, दिल्ली और मुंबई के सब बिल्डर मुझे मिलते रहते हैं, काफ़ी तकलीफ है। तो मैं सलाह देता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम करो, क्योंकि बाकी जगह अभी मैं हर साल 5 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, तो वो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तकलीफ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलने के लिए नहीं आता। बहुत बार मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं एक बार हवाई जहाज में आ रहा था, तो मुझे एक यंग कोट पहनकर, टॉय पहनकर एक अच्छा व्यक्ति आया और उसने अपने विस्तारा एयरवेज में दिल्ली मुंबई तुरंत आके मेरे पैर छुए। तो मुझे संकोच हुआ, मैं पहले 1A में बैठा था, वो थोड़े बीच पीछे पड़ा था। मैंने कहा, अरे भाई पैर क्यों छू रहे हो? बोले साहब मैं बर्बाद हुआ था। बोला क्या हुआ? बोले मेरा हरियाणा में, ये गुड़गांव में मेरी पूरी ज़मीन है, करीब मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन थी। मैंने बैंक से लोन लिया, बिल्डिंगें खड़ी की, पर कोई लेवाल नहीं था। और जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब मैं वो काफ़ी बड़ा हाईवे बन गया है, और शिव मूर्ति से एक टनल निकालकर ये T3 पे जाएगी एयरपोर्ट पर, और एक टनल वसंत विहार के आगे जाएगी। तो वहाँ उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। तो बोले मुझे कम से कम आपके कारण 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मेरे फ्लैट बिके गए, और सब मैं इतना ये हूँ कि घर में तुम्हारा फोटो लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, बहुत बार फ़ोन किया। तो बोले आपके घर से अपॉइंटमेंट ही नहीं देते मुझे। तो बोले बस मैं आप मिले यहाँ, तो मैं तो कभी कभी कोई रोड बनने से कुछ ऐसे भी फायदे होते होंगे।
पर ओवरऑल अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और ये जो आप कहते, मेरा तो आज भी आग्रह है कि घर जो लो कॉस्ट का है वो 1000 रुपये स्क्वायर फीट में बनना चाहिए। और इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो अभी आज बताया कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। जैसे आज की टेक्नोलॉजी आपको बताई, वैसे एक टेक्नोलॉजी आप बिल्डिंग में यूज़ करिए। वो टेक्नोलॉजी मलेशिया से अभी हमने लाई। वो ये है कि मेट्रो के और ब्रिज के 2 पियर के बीच में केवल 30 मीटर का डिस्टेंस होता है। अभी हमने तय किया कि अभी ये नोटिफाई भी हुआ है कि ये 120 मीटर तक होगा। तो उसमें यह है कि दोनों तरफ के जो पियर है उसमें 3 पियर गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ बीच में नहीं है, पर अभी बड़े बड़े जब बनते हैं तो बीच में पियर लेने पड़ते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी ये है कि जो ऊपर का बीम है वो प्रीकास्ट में, वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है। और इसलिए अभी मैं बीच में एक कार्यक्रम हुआ, हमने हमारे इसमें बोला था गुजरात की एक जापानी कंपनी है प्रीकास्ट का काम, पटेल इंजीनियरिंग का बॉम्बे दिल्ली हाईवे में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो गुजरात में कहीं तो भी है, हाँ, उसने अच्छा काम किया था वो। तो वो जो उसको दिया वो कंपनी है। तो उसके कारण एकदम कॉस्ट 40% ब्रिजेस की कम होती है। मैं इसको बता दूँ, एक बार मैं माजोली आइलैंड गया था। ये आसाम के मुख्यमंत्री थे सोनोवाल, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और ब्रह्मपुत्र यानी समुद्र है। तो मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था, तो सोनोवाल जी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था आसाम में। तो मुझे पढ़ के बोला कि वो तो ब्रिज घोषित कर दो। तो वो डायरेक्ट समुद्र जैसा ब्रिज, तो मैं बोला कहाँ भागल हो, इतना बड़ा ब्रिज कभी होता है क्या? बोले आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, आप चाहते हो बोले कि मैं हार जाऊँ चुनाव। ये पूरे लोग मेरे पीछे पड़े और आपको लगेंगे आप नहीं डिक्लेयर करें तो मैं हार गया। तो मैं बड़ा चिंता में पड़ा, क्या करना है। तो मैं माजोली में गया और मैंने आखिर, उसने इतना इमोशनली मुझे कहा तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ब्रिज बनाएंगे। और जब दिल्ली आया तो मैंने मीटिंग ली, तो पूछा ये ब्रिज बनाने का, तो डीजी ने बताया सर इसकी कॉस्ट 6000 करोड़ रुपये लगेगी। अब 6000 करोड़ का एक ही ब्रिज कैसे बनाना? तो मैं चिंता में पड़ा, तो साल भर में पीछे पड़ा। और हमने ये टेक्नोलॉजी और इसके साथ काफ़ी चेंजेस किए। और आपको ताज्जुब होगा कि जो 6000 करोड़ का ब्रिज है उसका टेंडर 680 करोड़ में गया यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने, और वो काम कर। तो टेक्नोलॉजी को बदल कर। दूसरा एक जोजिला टनल, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 13 किलोमीटर, कारगिल के नीचे है। -6 और -8 डिग्री वहाँ टेम्परेचर है। और वो टनल के लिए 3 बार टेंडर हुआ और उसका कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई कॉस्ट इतनी कैसे बढ़ती है? तो वो बताते हैं सरकार में एक बात है कि कॉस्ट बढ़ने के ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि माल ही नहीं ना किसी का, सरकार का है ना किसी का नहीं, तो कोई काम करने के लिए नहीं सोचता। फिर मैं 1 साल एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड के कंसल्टेंट बुलाए, मैं भी बैठा, धर्माधिकारी करके मेरे साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने मुंबई पुणे में ये टनल बनाई और वर्ली बांद्रा बनाने में भी उनका योगदान था। उनको मैंने एडवाइज़र करके लिया है, अब एज हो गया उनका। तो उन्होंने बैठकर हम लोग खूब वर्क करते थे और सब करके हमने पॉलिसी चेंज की, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेंज किए। और आपको मैं बताता हूँ कि वो टनल का टेंडर 4थी बार आपने निकाला, जिसका 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट थी, वो मेघा इंजीनियरिंग ने 5,000 करोड़ में लिया है। हमने 5,000 करोड़ बचाए। और आज ही नीति आयोग के मीटिंग में लद्दाख लेह के गवर्नर जो थे, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इतना फास्ट काम हो रहा है, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। अभी मेरा कल्पना है कि वो मनाली से एक टनल बनी, अटल टनल, तो रोहतांग पास पर जाते हैं तो 3.5 घंटे लगे, और वहाँ से नीचे उतर के मैं टनल से आया तो 9 मिनट में आया। अब रोहतांग पास वो जो टनल है, अटल टनल से मैं 4 टनल बना रहा हूँ, और वहाँ से लद्दाख लेह को पूरे हिमालय में, और फिर जोजिला है, जोजिला से झेड़मोर है, और झेड़मोर से श्रीनगर है। तो ये इतना अच्छा प्रदेश है, और वो टनल में 5,000 करोड़ बच गए। तो आज टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन।
और मटेरियल के भी करो। ये स्टील और सीमेंट वालों ने मोनोपोली की, बहुत गालियाँ खाई है मेरी इन्होंने, क्योंकि कार्टेल कर लेते हैं। तो मैंने अभी ग्लास फाइबर स्टील लाया है, तुम भी यूज़ करो। ग्लास फाइबर स्टील जो है वो सस्ता है क्योंकि लाइट है। 1 टन स्टील का जो वजन है, उसके ग्लास फाइबर स्टील का वजन 350-400 किलो है, और उसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है। तो आप धीरे धीरे अल्टरनेटिव मटेरियल रखो तो सब मटेरियल सप्लाई वाले ज़मीन पर रहेंगे, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी, तो बढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सीमेंट का भी अल्टरनेटिव ढूंढो, वो भी मैंने ढूंढे हैं। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं अभी वो मलेशियन इंजीनियर को पूछ रहा था कि ये जो बीम और पियर होता है, इसमें स्टील अगर नहीं डाला, इसमें कंक्रीट में अगर स्टील फाइबर डाला और उसके साथ उसका कास्टिंग किया तो क्या होगा। तो वो बोला, यह पहली बार आपने मुझे ये पूछा है, मैं अध्ययन करता हूँ, पर मुझे आपकी बात समझ में आ रही कि स्टील फाइबर डालने से जब स्ट्रेंथ बीम की इतना जाने के बजाय इतना ही है, कम है, तो ये हो सकता है ना, स्टील को निकाल दो उसमें से। और ये जो स्टील फाइबर है, उसमें जो पुराने टायर जो थे वो इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने स्टील फाइबर के लिए पुराने टायर को, मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, तो मैंने एनवायरनमेंट वालों को इसको इंपोर्ट करो। तो अभी प्लास्टिक 10% और रबर पाउडर 10% बिटुमिन में डाल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ यही है। तो मैंने वो तार निकलती है टायर में से, तो मैंने कहा ये तार से फाइबर निकालो वेस्ट में, बंगार से, और ये कास्टिंग में डालो, ताकि नए स्टील वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगी, इनका 60 रुपये किलो है। तो और अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई हुई है। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, उसका उपयोग करो, उस मटेरियल का उपयोग करो। अभी बाम्बू का काफ़ी उपयोग हो रहा है। अभी बंगलोर का नया एयरपोर्ट बाम्बू का बन रहा है, मालदीव में बड़े बड़े होटल्स बाम्बू के बन रहे हैं, वो भीमा बाम्बू हम जगह जगह लगा रहे हैं। तो जब बाम्बू लगना, बाम्बू इज़ ए गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आप जब 4 अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो स्टील वाले के भाव ज़मीन पर रहेंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फ्यूचर है। और मैं आपको ये कहूँगा कि मैं 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ, उसमें 36 पार्क मंजूर हुए, 5-7 पर काम भी शुरू हुआ है। ये ड्राई पोर्ट बना रहे हैं हम सिंधी में, फिर जालना में, और अभी तो मुंबई बड़े बड़े हाईवे पर हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अभी हम बस पोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बने, वैसे बस पोर्ट है, मेरे को अभी जो लिस्ट मिली है 100 बस पोर्ट की है। तो एक एक बस पोर्ट बड़े हैं, वो भी बीओटी में निकालने का हमारा विचार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूँ। 165 प्रपोजल अभी मैं मंजूर करने वाला हूँ। ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। कल शिवराज सिंह चौहान मेरे पास थे, तो मेरे मन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं भोपाल में जब हवाई जहाज़ से ऊपर उतरता हूँ तो वो 7 लेक है। तो मैंने उनको कहा कि मैं डबल डेकर बस हवा में चलने वाले आपको देता हूँ, और वो एयरपोर्ट से ऊपर से हवा से एक एक लेक के ऊपर से चलेगी और पूरा भोपाल घूमेगी, और 200 लोग एक समय हवा में चलेंगे। तो कल मैंने उनको उसका प्रेजेंटेशन बताया। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, और भारतीय लोग कम नहीं है। अब बड़े बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बहुत है। अभी हमारे यहाँ मेट्रो 350 करोड़ रुपए लगे। अब मैंने मेट्रो तैयार करने का प्लान किया है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। कोई विश्वास ही नहीं रखता। अभी हम नागपुर, अभी 18-19 तारीख को रेलवे मंत्री आ रहे हैं, और हम उसका काम शुरू करने वाले हैं कि नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया, और नागपुर से जबलपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, और नागपुर से रामटेक, और नागपुर से वर्षा, पूरी ब्रॉडगेज है। अब उसमें आप आइए, मैंने ये मॉडल तय किया है कि उसमें 2 करोड़ केवल खर्चा है, और 8 डब्बे की गाड़ी होगी रोलिंग स्टॉक, टेक्नोलॉजी 140 प्रति घंटा स्पीड से जाएगी। यानी नागपुर से अमरावती 1 घंटा 25 मिनट में, सब स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकेगी। वो डीसी मोटर से, उसमें वो गाड़ी भी देख के आया मैं, और एयर कंडीशन है, हवाई जहाज जैसी व्यवस्था है, और एसटी के बराबर टिकट रखना है, और उसमें बिजनेस क्लास एयरपोर्ट विमान में जैसा होता वैसा है, पूरा डिज़ाइन फाइनल हुआ है। और गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगी।
अब मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे को कहा तो मुझे मंत्री जी बोले कि मैं रेलवे देता हूँ। मतलब तुम क्यों खर्चा करते हो? जैसे प्रकाश ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, अशोक ट्रैवल, तो मैंने सबको का 36 करोड़ 38 करोड़ की निगोशिएट करके 30 करोड़ पर लाई है और 2-3 करोड़ कम करेंगे। और वो एक जन एक खड़ी कर लो गाड़ी, उसमें एक डब्बा जो होगा, सब गाड़ी एयर कंडीशन है और उसमें मालगाड़ी का एक डब्बा, 2 सामने माल के लिए, फ्रूट वेजिटेबल और फार्मेसी के लिए। और अभी 100 मेट्रो चाहिए और आपको जो टिकट है वो पूरा ऑटोमेटिक है, कहीं आपको टिकट देने की जरूरत नहीं। और जो माल है वो आपको किराया मिलेगा, उसके भी एजेंट होंगे और उसका पर किलोमीटर केवल रेलवे को चार्ज देना है। और वो भी बहुत कम किया है, रेलवे मंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है। अच्छा IRR है, 3 साल में पैसे निकल जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के अभी ये रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बहुत सी योजनाएं हैं। अभी माहौर में हमारे यहाँ मराठे साहब थे, PWD के सेक्रेटरी, बहुत अच्छे अधिकारी है। तो अभी माहौर का मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था रोप वे बनाऊँगा। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तो सब मैं रोप वे क्यों सस्ते में बनेगा, मतलब कैसा? तो बोले 10 लोगों की लिफ्ट लगाओ इस हाथ, फिर थोड़ा पैदल जाके फिर दूसरी लगाओ तो मंदिर में जाओ, तो लिफ्ट से ही काम होगा, तो रोप वे क्यों करते हो? तो अभी उसका भूमि पूजन करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। तो इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी टूरिज़्म मिनिस्ट्री मेरे पास आए थे, मैंने उनको टूरिज़्म में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी बना के दी है और मेरे तो 50,000 करोड़ के कम से कम प्रोजेक्ट निकलेंगे। इतने इकोनॉमिकली वायबल है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। तो आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक ही काम अनेक सालों तक करेंगे तो सैचुरेशन आने वाला है। बहुत खुशी है मुझे कि मुरली जी का आपने सत्कार किया, क्योंकि उनकी जनरेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अठौले जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मेरा सत्कार क्यों किया? क्योंकि मैं सत्कार के कोई कार्यक्रम में जाता नहीं। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं नहीं बोल देता, क्योंकि मैं सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, किसी के गले में हार नहीं डालता। अभी तक मेरा बिल नहीं है 100 रुपये का। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर के लिए मैंने हार खरीदी किया था और मैं अपना कटआउट नहीं लगाता, अपने पैसे से नहीं लगाता। मुझे बहुत लोग बोलते मेरा नाम कटआउट में फ़ोटो नहीं है। अरे मतलब तेरा फोटो इसलिए नहीं कि तेरा फोटो लगा के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं लगा जिस दिन लोगों को लगता है इनका फोटो लगाने से फ़ायदा है तो लगा देते हैं, मतलब आप चिंता क्यों करते हैं। तो मुझे आपने सत्कार किया, मैं नागपुर का ही हूँ और इसलिए आपकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं हैं। और बल्कि मैं इंजीनियर नहीं होने के बाद भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला और अभी भी हर साल 5 लाख करोड़ के काम है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कोई। आपको मैं बता दूँ, आप हमारे यहाँ काम करिए, ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत तकलीफ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा ठेकेदार को हमारे यहाँ घर आने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जगह वो अभी आप बोल रहे थे ना भाषण में, काउंसिल तैयार करो, तो मैंने अजय को और सुनील को कहा और लिफाफा मांगने वाला नया तैयार हो जाएगा पहले तो तुम त्रस्त हो। अच्छा, तुम्हारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो काम नहीं मिलेगा। चुपचाप सब गांधीवादी हो आप क्योंकि नोटा दिए बिना काम नहीं होता कोई। तुम्हारी भी आदत बराबर है। तो अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले एजेंसियाँ मत बढ़ाओ, उल्टा कम करो। मैंने अभी निर्णय किया कि एक फाइल 16 जगह जा रही थी, तो PM ने कहा यह 4 जगह जानी चाहिए। तो NHAI चेयरमैन को कहा तुम्हारी कितनी जगह जा रही? 9 जगह जा रही, 12 जगह जा रही। मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो आप? बोले सर ये प्रोसीजर है। मतलब प्रोसीजर नहीं है, हर जगह जिसके पास फाइल जाती है वो बोलता माझं काय हड़ा म्हणले ये बंद करो। और अभी 4 ही जगह जाएगी। जितने लोग फाइल को जांच करते हैं उनसे कैसे क्लियर करना, उसका एक्सपर्टाइज आप जैसे लोगों के पास है और किसके पास है तो मैंने कहा कि ये धंधा ही बंद करो, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करो ताकि ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आने वाले समय में आपकी डिफ़िकल्टीज़, तकलीफ़ें मैं जानता हूँ। आज अर्बन इस पर भी नीति आयोग में चर्चा थी और निश्चित रूप से नक्शा सैंक्शन करने के लिए आपको कॉरपोरेशन में क्या क्या करना पड़ता है इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी जा सकती है। मुझे पता है आने वाले मेरे भी घर के नक्शे के लिए मेरे लड़के ने एक बार मुझे बोल दिया की माझ्या फंडात पडू नका, तुमचं नाव ही माझी अडचण आहे
आम्ही आमचं काम करून घेऊ, तुम्ही फोनही करू नका आणि कोणाला सांगूही नका. तुम्ही सांगितलं तर आमची तकलीफ वाढते म्हणे. तो मुझे पता है कि कितने प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, पर लाइफ इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस. द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स. मैं रिचर्ड निक्सन के ऑटोबायोग्राफी का ये वाक्य अक्सर याद रखता हूँ. जब वो चुनाव हार गए और वाटरगेट के कारण उनकी बहुत बदनामी हुई, तो वॉशिंगटन में उनको कोई एरिया में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी. लोगों ने बहिष्कृत किया था, और ऐसे समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है. वो किताब मैंने बहुत सुंदर लिखी है. उसके आखिरी में एक सुंदर वाक्य है. वो यही वाक्य है कि द मैन इज़ नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज़ डिफीटेड, बट ही इज़ फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स. युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता. युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है. तो लड़ते रहना चाहिए. आपके यहाँ तो मालूम नहीं, पर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनेक लोगों को जो मुर्दा करके डिक्लेयर हो गए थे उनको जान फूकी और उनको फिर काम को लगा दिया, बड़े बड़े कंपनियों को. और अभी भी मैं कल वो हमारी IAS ऑफिसर है NHA की चेयरमन, उसको कह रहा था, तिला मराठी समजतो उनको, मॅडम मी म्हटलं वधूवर सूचक मंडळ काढला. सर इसका मतलब क्या है? मैंने बोला जो महिला विधवा हुई है उसका पुनर्विवाह करने का काम शुरू किया है. तो जो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्टर देखते रहता हूँ, उसका काम फिलहाल शुरू किया, और धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. क्योंकि मैं जब मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और हमने इंडियन बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल रिजेक्ट किए, बाकी सब फिर से खड़े किए. क्योंकि 90% सरकारी अधिकारी जिम्मेदार थे प्रोजेक्ट के लिए जो अटक गए थे. तो आज भी आपके पास अड़चने हैं, समस्या है, पर छोटू भैया जैसी सक्सेस स्टोरी है. और आज छोटू भैया, और मुझे लाभे साहब की भी याद आ रही है, छोटू भैया के बहुत खास मित्र थे. वो भी छोटू भैया के साथ बिल्कुल हर काम में अग्रसर रहते थे. उनका मृत्यु हो गया, पर निश्चित रूप से छोटू भैया का जो कुछ उन्होंने काम किया वो हम निश्चित रूप से याद रखेंगे. और मैं आज के दिन में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको निरोगी और दीर्घायुष्य प्राप्त हो. यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. वैसे तो आपको मालूम है कि बाइक सामने आए तो मैं बहुत डरता हूँ, बहुत डर लगता है. क्योंकि एक फंक्शन में मैं गया और बस गेस्ट स्पीकर करके मुझे बुलाया था, तो मैं गया, तो मेरा जब नंबर आया तो संचालक थे, उन्होंने बोला कि नाउ आई इनवाइट और गेस्ट स्पीकर PR मुंडले टू एड्रेस द गैदरिंग. अब जैसा मैं माइक के पास गया तो माइक ने इतने आड़े टेढ़े आवाज़ करना चालू कर दिए कि मेरे को भाषण करना कठिन गया. बोला पंचायत आई, उतने में एक सामने से स्क्रू ड्राइवर लेके एक लड़का मेरे डायरेक्शन में आने लगा. अरे मैंने बोला, तो वो होस्ट ने उसको पूछा, अरे तू कहाँ जा रहा? तो उसने बोला कि नहीं, वो स्पीकर का स्क्रू ढीला हो गया है, वो जरा टाइट कर देता हूँ. मैं इतना डर गया, मैंने बोला अब ये क्या करता क्या नहीं. तो फॉर्चुनेटली वो डब्बे के पास गया, उसने कुछ तो भी किया, मैं बच गया. बूटी बोरी और नागपुर सेंटर ने आज ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्रोग्राम अरेंज किया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. वैसे तो मैंने भी पक्का किया था कि 75 की उम्र के बाद कोई सत्कार स्वीकार नहीं करना, मगर सत्कार स्वीकार नहीं करने होने के बाद जब आठवले जी और बाकी लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि भैया साहब आपका हमको सत्कार करने का है, तो ये मैं खुद वो फील्ड का होने से कारण और BI से 42 साल से जुड़ा हूँ, इसके कारण मैं उनको ना नहीं कर सका. और मेरा पक्का विचार था कि नहीं स्वीकार करने का, मगर तो भी उन्होंने जो आग्रह किया उसके वजह से मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा. वैसा आप लोगों को मुझे कॉन्ट्रैक्टर करके सब लोग जानते हैं, और मेरी दूसरी क्वालिटी आपको मालूम नहीं है. आई एम द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इन विदर्भ. आप बोलेंगे आप कैसे क्या? मैं बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इन विदर्भ
बिकॉज माई कल्चर इज टू एग्री विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरा एग्रीकल्चर स्वभाव होने के कारण आठवले जी का प्रस्ताव मेरे को मंजूर करना पड़ा। यहाँ बूटीबोरी सेंटर का जो ऑर्गेनाइज किया आज मीटिंग, उसमें आप सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया होगा। एक अच्छे विचार उसमें आपने डिस्कस किए होंगे। मुझे पूरी आशा है, निमिष जी भी यहाँ है, मुझे पूरी आशा है कि आपका आज का जो मीटिंग थी वो काफ़ी फलदायी होंगी और उससे अच्छे नतीजे बाहर निकलेंगे। वैसा बीआई तो हरदम जो है वो कठिनाई से गुजरा है। मैं जब से देख रहा हूँ बीआई में प्रॉब्लम के सिवा दूसरा और कुछ नहीं, मगर ये प्रॉब्लम जो है ये चलते रहने वाली बात है। ये प्रॉब्लम, जैसा नितिन जी ने कहा कि प्रॉब्लम में से तो बाहर आना ही पड़ेगा सबको, और प्रॉब्लम आके बीआई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी ये देखने का है कि अपन जो है वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं क्या, अब तक पूरा जो है काम जिस प्रकार से करना चाहिए वो करते क्या। मैं भी जब लोगों को ये बताता था, जूनियर कॉन्ट्रैक्टर को, सबको, कि भाई देखो आपकी क्षमता जो है, आपकी योग्यता जो है, उसी हिसाब से टेंडर भरो, पूरे एक्ट्स का स्टडी करो, पूरे जो बाकी जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको स्टडी करो और बाद में टेंडर भरो। टेंडर भरने के बाद फिर रोना कि भाई जीएसटी बढ़ गया, ये एक्ट लागू हो गया, एनवायरनमेंट आ गया, ये बात गलत है। तो मेरा सबको यही है सुझाव कि कठिन दिन तो है, उसमें से रास्ता निकालने का है, मगर टेंडर भरने के पहले ये विचार करते जाओ और क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये नितिन जी का भी ये आग्रह रहता है कि देखो भाई आप सब विचार करके टेंडर भरो। एक बार आपने टेंडर भर दिया तो फिर आपके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपके टाइम लिमिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बस दोनों चीज़ें पक्की रखो। क्वालिटी के बारे में जो है, जैसा नितिन जी के ऑफिस में है कि अमेरिका इज़ रीच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड, वैसा मेरे को एक बहुत अच्छा कोटेशन मिला जो अपने बिल्डर लोगों के बड़े काम का है, मेरे ऑफिस में मैंने लगाया है। वो कोटेशन ऐसा है कि व्हाट एवर यू बिल्ड इट वेल, बिल्ड इट स्ट्रांग, बिल्ड इट ब्यूटीफुली, बिल्ड इट ब्यूटीफुली, build it faithfully, and above all, build it for the eye of God. आप जो भी काम करोगे एक अच्छा कीजिए, मजबूत कीजिए, एक अपनी ड्यूटी कर्तव्य समझ के कीजिए, उसको एक सुंदरता से कीजिए, पूरे ईमानदारी के साथ कीजिए, और सबसे ऊपर भगवान के आँखों को भी अच्छा लगे ऐसा काम कीजिए। कभी आपको ज़िंदगी में रोने की नौबत नहीं आएगी। इंडस्ट्री के जो है आजकल आप कॉम्प्रोमाइज़ जो है क्वालिटी से नहीं कर सकते, टाइम लिमिट से नहीं कर सकते। आजकल क्वालिटी में तो वारंटी पीरियड आ गया है। आप बिल्डिंग बनाएंगे 7 साल की गारंटी, क्रैक गई तो मुश्किल। डैम बनाओ, रोड बनाओ, रोड को भी क्रैक गई तो वो आप तो वारंटी पीरियड में है, बड़े भारी पड़ता है। ये भी पक्का ख्याल में रखना पड़ेगा। तो ये हिसाब से जो है अपना जो है काम जो है आगे बढ़ने का है बिल्डर लोगों ने, और ख़ुद को संभालते हुए। मैं तो देखता हूँ कि इतनी कैजुअलिटी होती कभी कभी कि बड़े दिन, जैसा अभी नितिन जी ने बोला है कि बड़े बड़े डूबे हुए कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने बाहर निकाला, तो वैसे डूबे हुए कॉन्ट्रैक्टर हमारे व्यवसाय में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी मिलते हैं। तो उसको ज़रा सावधानी से अपन ने आगे बढ़ना चाहिए। बीआई जो है बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है और बीआई का काम बढ़ते जा रहा है। निमिष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार सुनते रहता हूँ। निमिष जी बस आपको ऐसा ही काम करते रहिए। राजेंद्र जी भी आपके साथ है, बाकी टीम आपके साथ है, आपका भी काम बढ़े।
अभी आपने सुना ही है कि कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री का पूरा चेहरा जो है गए 25 साल में बदल गया है। मेरे को याद है कि 1995 में जब नितिन जी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार ये कंसेप्ट लाया कि बीओटी में काम हो सकता है। उसके लिए कोई उनको मानने को तैयार नहीं, कोई बोले कि ये एक पीडब्ल्यूडी का ढांचा है, ये ढांचे के अंदर बीओटी का काम कैसा हो सकता है। उसके लिए उस टाइम हमने बीआई ने मुंबई में भी मीटिंग रखी थी, एक पुणे में मीटिंग रखी थी, मैं खुद था वो मीटिंग में। फॉर्चुनेट उस टाइम महेशकर, रामलाल वाधवान ऐसे लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने काम चालू किया और जब उनके अच्छे काम के रिजल्ट दिखे तो लोगों की इतनी भीड़ हो गई कि अभी बीओटी के सिवाय बीओटी के लिए काम करने के लिए लोग जो है बहुत आगे बढ़ते हैं। और इसलिए नितिन जी ने कहा कि जो मेरे को पैसे की कोई चिंता नहीं रहती, मगर एक ही बात है कि टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और टाइम बाउंड, इससे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनोवेशन तो इतना आ गया है इंडस्ट्री में कि हर साल नया नया आ रहा है। जैसे अभी आपने सुना ही, फिर से मैं रिपीट नहीं करता कि एक ज़माने में कोयना डैम बना तो प्लेन बार थे, उसमें रिब बार आ गए, अभी टीएमटी आ गया, आने वाले दिनों में फाइबर आने वाला है। तो ये सब आते रहेगा, मगर ये उससे मैचिंग अपना जो है अपने खुद को भी अपने को ढालते जाना पड़ेगा और जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा आज यहाँ सत्कार किया, अब ये सत्कार के लायक जो है मेरा एज अभी 84 का हो गया है। एक बात है, मैं नितिन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी क्षेत्र में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है कि जो एम्प्लॉयमेंट देती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने गए 70 साल, जब से 75 साल आज़ादी के मना रहे, कि देश बनाने में हमारा भी कुछ हिस्सा है, कुछ नहीं ज़्यादा हिस्सा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। और अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इस देश में अभी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं होता, प्रॉपरली रिगार्ड उसको नहीं मिलता। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तरफ देखने का नज़रिया जो है गवर्नमेंट का अभी भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं? आप सभी क्षेत्र में आप सबको पद्मश्री देते, पद्म भूषण देते, सब करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने क्या किया? आज पूरे 75 साल में हमने भी देश बनाया है, आज बात की अटल टनल की। हिमालय जैसे मिट्टी के पहाड़ में टनल बनाना कुछ मामूली बात नहीं है। अपने अजय जी संचेती ने भी एक टनल बनाया, तो मिट्टी के पहाड़ में टनल बनाना, यहाँ 9 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का जो भी है, सादी बात है। वहाँ के जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन ये होगी एजेंसी, उसने कितनी मेहनत की होगी। आज ब्रह्मपुत्र के ऊपर 9 किलोमीटर का लंबा ब्रिज बना, कितना मेहनत की होगी वहाँ के इंजीनियर लोगों ने। मेरा कहना नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्टर को ये होना चाहिए सम्मान, सभी इंजीनियर, डिज़ाइनर जो भी होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एज सच मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी सर्विसेज जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए और पद्मश्री के अवार्ड में उनका भी जो है थोड़ा बहुत सम्मान होना चाहिए, ऐसा ही मैं आशा करता हूँ। अभी मेरे सत्कार के लिए जो भी सभी लोगों ने अपने भावना व्यक्त की, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आदरपूर्वक उसका जो है मैं सम्मान करता हूँ। अभी 54 साल मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग किया और 54 साल कॉन्ट्रैक्टिंग करने के बाद मैंने पूरा बिजनेस छोड़ दिया, एकदम 100% छोड़ दिया। अभी मेरा एज 84 है और 84 के एज में 80 के बाद कुछ ना कुछ तकलीफ चालू होती है। आज देखा होगा आपने, मैं बैठ के भाषण दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को आँखों की तकलीफ है और 80 के बाद ये तो होने ही है, सबको होने का है। तो भी मेरे को फॉर्चुनेटली मेरे सभी पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स एकदम फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, वो 99% फिट हूँ।
और आपने देखा होगा कि मेरे को आँखों के तकलीफ की वजह से मेरे को आईसाइट एकदम अच्छी है, 100% अच्छी है। और आई लीड्स जो है वो आँखों के ऊपर पूरी बैठती है न्यूरोलॉजिकली। सब लोगों को बताया, बहुत डॉक्टर को बताया, बोले नहीं नहीं आपका ब्रेन से कंट्रोल चला गया है, बोले आँखों का। तो चलो मेरे को आँख जाने का दुख तो हुआ, पर कम से कम सब डॉक्टर लोगों ने ब्रेन है ये सर्टिफाई किया, अच्छा लगा। वही बोला कम से कम ये तो प्लस साइड है, तो ये अच्छी होगी। पर गड़बड़ क्या होती है, अभी आपने देखा होगा, मैं बाहर गया था या डायस पे आया तो खद्दे पे हाथ रख के सब मुझे जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, चलने में कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, पर खद्दे पे हाथ रखते हैं उससे भी गड़बड़ होती है। ये सब लोग देखते हैं कि भाई भैया साहब खद्दे पे हाथ रख के जा रहे हैं। तो ये एक लास्ट ईयर में एक रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने को गया, खाना निपटा के जैसा बाहर निकलने लगा तो मेरी ग्रैंड डॉटर, कॉलेज गोइंग ग्रैंड डॉटर नज़दीक में आई और बोले नाना जी आपको खद्दा दूँ क्या? आजोबा तुम्हाला खद्दा देऊ का म्हणे। अब मैं चमक गया, मुझे बोला क्या गड़बड़ होगी अभी। वह ख्याल में आ गया कि खद्दा देने की तो अभी टाइम आ गया, ऐसा इनको लग रहा। मैं चमक गया, वह बहुत ही जरा धीरज फिर किया, बांधा जरा धीरज, और बेटा बेटी है अभी तुम्हारी सब लोगों की शादी वादी होने दो, मुझे भी पोते होते देखने दो, उसके बाद मैं आराम से ये काम आपको लोगों को करते कहा है, तो उसमें कोई बात नहीं। तो ऐसी भी गड़बड़ हो जाती है। और बाकी मेरी तबीयत एकदम अच्छी है, अच्छा चल रहा है। आप सब लोगों ने जो है मेरे लिए जो भावना व्यक्त की, आदर व्यक्त किया, और ख़ास करके आज के इस प्रोग्राम में मेरा सत्कार और वो भी नितिन जी के हाथ से। आज देखा होगा कि आज इस देश का पूरा चेहरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बदलने का पूरा श्रेय जो है वो नितिन जी को जाते हैं। पूरे देश में रास्तों का जाला जिन्होंने बुना, ऐसे हमारे देश के स्पाइडरमैन जिसको बोल सकते हैं, वो स्पाइडरमैन जो है वो नितिन जी है, और उनके हाथ से मेरा सत्कार हुआ। और ये आपने प्रोग्राम अरेंज किया, इसलिए आठवले जी और यहाँ का नागपुर सेंटर, बूटीबोरी सेंटर, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और आने वाले दिनों में भी आपका साथ हरदम ऐसा ही मिलते रहे, आप सब लोगों का स्नेह मिलते रहे, और बस तबीयत अच्छी रखना यही एक मेरा ध्येय है। और आप सब लोगों से मिलना, और आपका वीआई ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, सभी मेरे को सम्मान भी दिया है। मेरे को पहले महाराष्ट्र स्टेट चेयरमैन बनाया, बाद में वाइस प्रेसिडेंट, और बाद में यूनियनमसली आपने मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया। तो ये सत्कार सभी मिला, मैं वीआई का ही बहुत आभारी हूँ। आपने मेरा सत्कार किया, इसलिए फिर से एक बार आभार प्रदर्शन यह एक फॉर्मेलिटीज़ रहती है, पर बहुत सारे लोगों के हाथों से और सहकार्य से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इसलिए कुछ न कुछ इनके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। वैसे तो सबसे पहले नितिन जी का हम सब लोगों ने धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना मूल्य टाइम निकाल के आज वो आए। वैसे उनका आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। 1 तारीख को हम लोगों को फ़ोन आया कि साहब 7 तारीख को आने वाले नहीं हैं, नीति आयोग की मीटिंग लग गई, पीएम के साथ में मीटिंग है। तो सब घबरा गए, क्योंकि सर आपको सुनने के लिए 7 राज्यों से यहाँ सब डेलीगेट्स आए हैं, अब नितिन जी नहीं आने वाले तो सब गड़बड़ होगी। फिर हम भैया साहब के पास में गए कि भैया साहब ऐसे ऐसी अड़चन आ गई है। तो बोले जिस दिन नितिन जी आएंगे उस दिन सत्कार करना, तब तक नहीं करना। फिर हम लोगों ने नितिन जी को रिक्वेस्ट की कि कुछ तो भी करो। ये करो शब्द नितिन जी के लिए बहुत ही पॉसिबल है, इजी है। उन्होंने फटाफट अपने पीए लोगों से बात की कि नहीं, मेरे को भैया साहब का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जाना ही है। और आखिरी पीए लोगों ने वो कार्यक्रम के लिए परमिशन दी थी नितिन जी को। और उस दिन हम लोगों को बोला गया, नितिन जी ने खुद मुझे बताया कि मैं 7 तारीख को आऊँगा, मैं यहाँ आऊँगा।
उनका प्रेम आज खींच के लाया। जो भैया साहब के बारे में उनका जो प्रेम है, आदर सत्कार है, वो आज हम लोग के बीच में आके उन्होंने बताया। क्योंकि भैया साहब का जो आज व्यक्तिमत्व नागपुर में है वो अलग है, हम लोगों के समझ के बाहर है। मैं आज भैया साहब के साथ में 35 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने कई गुरु मंत्र दिए और सही में उन्होंने पहले दिन मुझे बताया था, अभी जो उन्होंने बताया कि तू एग्रीकल्चरिस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर बाद में है। मुझे भी समझा नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट नया नया था, मैं जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट मतलब खेती वाला। नहीं बोले वैसा नहीं, एग्रीकल्चर मतलब साहब ने बोला खड़दकर ऐसा ऐसा करना है, यस सर। नेता ने बोला शाम को घर आ जाना, यस सर। कोई किसी ने भी बोला ये करना है, मतलब क्या है, एग्री करना है। ये अपना कल्चर रहना चाहिए, तभी सक्सेस कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। चाहे बीबी ने भी बोला कि शाम को बराबर जल्दी आ जाना, तो भी यस बॉस आ रहा हूँ। ये कल्चर जिसके पास में है वो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसा उनका गुरु मंत्र मुझे मिला था और सही में वही मैं एक्सेप्ट करके आज यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं आखिरी इस मोड पे आ जाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, सर को भी जाना है। अभी नितिन जी शाम की फ्लाइट से दिल्ली भी जाने वाले हैं। मैं सभी लोगों जो यहाँ डेलीगेट्स आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी तादाद से यहाँ पे आए, ये कार्यक्रम अटेंड किया, सब महानुभाव उसको सुना। आप लोगों ने जो हमको मदद की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले, उन लोगों ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सभी को मैं आपको फिर से एक बार BI नागपुर की तरफ से धन्यवाद देते हूँ। एक मेरा भाषण खत्म।